أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس قلنسوۃ بیضاء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم بزرگان دین اور پیارے اسلامی بھائیوں، گزشتہ ہفتے اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ جمعے میں جلدی آنے کی کوشش کی جائے تاکہ بات پوری سمجھ میں آ سکے. جمعے کے اندر، جمعے کے دن میں جمعے کے آداب جو پچھلے ہفتے بیان کیے گئے، انہی میں سے کچھ آداب اب بھی انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. جمعے کے دن غسل کرنا مسنون ہے اور ماشاءاللہ تمام مسلمان غسل کرتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہیں. خوشبو لگانا مسنون ہے، یہ جس کو میسر ہوتی ہے وہ لگا لیتا ہے، جس کو نہیں ہوتی تو وہ نہیں لگا پاتا. مسواک کرنا مسنون ہے. عمدہ لباس پہننا، اپنے تمام کپڑوں میں جتنے کپڑے ہیں، جتنے بھی اچھے سے اچھے کپڑا ہو اس کو پہننا. اور نماز جمعہ پڑھنے کے لیے پیدل جانا، یہ بھی مسنون ہے. یہ آداب ہیں. اور جب مسجد میں آئیں امام کے قریب ترین بیٹھنا، اول صف میں بیٹھنے کی کوشش کرنا، خطبے کو بغور سننا، اس پر ذرا توجہ دینی چاہیے ہم کو. خطبے کو بغور سننا. ہم لوگ خطبے کو توجہ سے نہیں سنتے، سوچتے کہ یار یہ تو عربی زبان کا ہے، عربی زبان ہمیں آتی نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ امام صاحب کیا بول رہے ہیں. تو یاد رکھو خطبے کو سننا مسنون ہے. سمجھ میں آیا نہ آئے، کم سے کم یہ سوچ لو کہ سننا ہے تو ہم سننے ہیں، اور بڑی توجہ کے ساتھ سننا. جب آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ، ہر ہفتے کچھ نہ کچھ پڑھا جاتا ہے خطبے میں. جب توجہ سنیں گے تو کچھ نہ کچھ پلے پڑے گا کہ اس میں کیا پڑھا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا جا رہا ہے، اور تمام اہل و عیال پر درود بھیجا جا رہا ہے، آپ کی آل پر درود بھیجا جا رہا ہے، اور تمام امت کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں. اور کچھ نصیحت وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ بھی اس میں کری جاتی ہیں. جب توجہ سنیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پلے پڑے گا. تو خطبے کو بغور سننا. خطبے کے دوران گفتگو کرنا، بات چیت کرنا بالکل جائز نہیں ہے. بات چیت کرنا تو درکنار. اگر کسی نے نماز کی نیت باندھ رکھی ہے، 4 رکعت سنت کی باندھ رکھی ہوگی، غالباً یہی نماز پڑھتا ہے عام طور پر، تو جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے تو اس نماز کو شارٹ کر دے، اور اگر ابھی نیت باندھی ہے تو سلام پھیر دے. ابھی نیت باندھی ہے تو سلام پھیر دے، اس نماز کو بعد میں پڑھ لے، پہلے خطبہ سنیں. خطبے کی اہمیت کو سمجھو، خطبے کی اہمیت کو سمجھو. نماز کی نیت باندھی ہے، خطیب نے خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چل دیا، خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چل دیا تو اس نیت باندھی رکھی تھی، بس ابھی نیت باندھی ہے، فوراً سلام پھیر دے، نماز کو وہی ختم کر دے، اس نماز کو بعد میں پڑھے، پہلے خطبہ سنیں. اور اگر
4 रकात की नीयत बांध रखी है, नीयत बांध रखी सुन्नत की, 2 रकात होने वाली हैं तो 2 पूरी करके सलाम फेर दे, तीसरी के लिए खड़ा ना हो, फिर जो 2 बची है बाद में पढ़ दे। समझ में आ रही है बात? खुतबे का सुनना कितना ज़रूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी अहमियत का हामिल है। और बड़ी तवज्जो से सुने, ये आलती पालती मार के न बैठें, इस तरह बैठें 2 जानों होकर, जिस तरह नमाज में बैठा करते हैं, जिस तरह नमाज में बैठा करते हैं तवज्जो के साथ सुनने के लिए। जब आलती पालती मार के बैठेंगे तो सुस्ती आएगी, और सुस्ती के बिना पर हमको क्या आएगा, मस्जिद के अंदर बैठे नींद आएगी। क्या आएगी? नींद आएगी। मस्जिद में बैठ के हमें नींद आएगी, क्योंकि मस्जिद सुकून की जगह है। जहाँ मस्जिद के अंदर जितना सुकून मिलता है कहीं नहीं मिलता, और जहाँ सुकून मिला है इंसान को फ़ौरन नींद आ जाती है, फ़ौरन नींद आ जाती है। तो मस्जिद के अंदर आपको सुकून मिलेगा, सुकून मिलने के बाद सख्त नींद आ जाएगी। तो इस तरह बैठो कि आपको नींद ना आए, यानी गोया कि नमाज की हालत में जब बैठते हैं तो नींद नहीं आती। नींद इस तरह कैफियत होनी चाहिए हमारी कि हम नमाज में बैठे हुए हैं, बड़ी तवज्जो रहनी चाहिए खतीब की तरफ। ये मैं आदाब बता रहा हूँ, अभी जिस टॉपिक पे आना चाहिए उस पर आया ही नहीं हूँ मैं, अभी यहाँ से शुरू करना चाहिए। अगर कोई शख्स बात कर रहा हो, किसी बच्चे लड़ रहे हों या बात कर रहे हों, खुतबा देने वाला खतीब खुतबा दे रहा हो, तो सिर्फ उस खतीब को ही इजाज़त है कि वो उनको रोक टोक दे, इसके अलावा किसी को इजाज़त नहीं है कि रोक टोक दे। कि पड़ोस में बात कर रहे हैं लोग, हाँ भाई चुप जाओ, खामोश रहो, जोर से मत बोलो, इस तरह के अल्फाज के ज़रिए, किसी और अल्फाज के ज़रिए से उनको रोकना और टोकना भी जायज़ नहीं है। अगर कोई शोर मचा रहे हो या खेल रहे हो, बच्चे होते हैं कंकड़ी पत्थर से खेलते हैं, या मस्जिद में चटाई वगैरह सूद रहे हैं, धागे सूद रहे हैं, तो ये हरकत करने वाले को लोग टोकते हैं ना, टोकते हैं, तो इस तरह टोकना भी जायज़ नहीं है। यानी इतनी तवज्जो से सुना जाए, इतनी तवज्जो सुना जाए, बराबर में पड़ोस में क्या हो रहा है हमें बिल्कुल नहीं पता। जिस तरह नमाज में जब नमाज पढ़ते हैं तो पड़ोस में कोई क्या कर रहा है हमें नहीं पता। इतनी अहमियत का अमल होता है खुतबा। तो उस खुतबे को सुनने के लिए तवज्जो दरकार है पूरी। खतीब ने क्या बोला, क्या कहा, क्या फरमाया, कौन सी रिवायत पढ़ी, कौन सी हदीस पढ़ी, क्या मतलब बयान किया, उसको सुनना ज़रूरी है। जैसे ही खतीब खुतबा देने के लिए चढ़े तब से सारे काम बंद हो जाएं, सिर्फ खतीब की तरफ तवज्जो। मैंने बताया था पिछले हफ्ते भी, जब मस्जिद के लिए लोग आते हैं जुमा पढ़ने के लिए तो एक रजिस्टर लेके बैठ जाते हैं फरिश्ते दरवाजे पर, और उनका सवाब लिखते हैं, कौन पहले आया कौन बाद में आया, प्रोसेस होता है। जैसे ही खतीब खुतबा देने के लिए मिंबर पर चढ़ता है तो वो जो फरिश्ते सवाब लिखने वाले, जुमे में एंट्री लिखने वाले, कौन कौन मस्जिद में जुमा पढ़ने आया है, वो एंट्री लिख रहे होते हैं। कौन कौन मस्जिद में दाखिल हुआ है वो एंट्री को बंद कर देते हैं। दाखिले की जो रजिस्टर है दाखिले का वो बंद कर दिया। अब अगर रजिस्टर बंद होने के बाद आओगे तो जुम्मा पढ़ने वालों में जिनका नाम आना चाहिए उनका नाम नहीं आएगा, क्योंकि वो आ चुके जिन जो आना था। अब तुम बाद में आए हो तो सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए आए हो, जुम्मा पढ़ने वाले नहीं हो। समझ में आ रही है? कितना पहले आना चाहिए जुम्मा पढ़ने के लिए? जुम्मा पढ़ने के लिए कितना पहले आना चाहिए हमें? अगर जुम्मा पढ़ने वालों में नाम लिखवाना है तो खतीब के खुतबा देने से पहले आना पड़ेगा, ताकि हमारा नाम भी अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाज़िरी पहुंच जाए कि हाँ हमने जुम्मा पढ़ा है। और हाज़िरी उसी की लगी जो पहले आएगा, और जो बाद में आएगा उसकी हाज़िरी लगेगी नहीं। जब हाज़िरी नहीं लगी, तुम्हारा नाम नहीं लिखा उसमें, ना तुम्हारे अब्बा का नाम लिखा ना तुम्हारा नाम लिखा, तो वहाँ कैसे पता लगेगा जुम्मा पढ़ा तुमने नहीं पढ़ा? कैसे पता लगेगा? वो बात अलग है कि हमारे पास फरिश्ते मौजूद हैं हमारे दाएँ और बाएँ, वो लिखते हैं कि हाँ ने नमाज़ पढ़ी ना पढ़ी है, नमाज़ पढ़ी है ना पढ़ी है। ये तो लिखते हैं, हर काम लिखते हैं। वो गुनाह करा है, सवाब करा है, सवाब का काम करा है, कौन सा अमल किया है, हर अमल को लिखा जाता है हमारे। चाहे हम अच्छे अमल करें या बुरे अमल करें, हर अमल को लिखा जा रहा है। लेकिन बात हो रही जुमे की। किसकी बात है? जुम्मा पढ़ने वालों में हमारी एंट्री, हमारा दाखिला हुआ है या नहीं हुआ है? इसका पता कैसे चलेगा कि खतीब के खुतबा देने से पहले आए हैं बाद में? खुतबा शुरू होने से पहले। जैसे ही खतीब खुतबा देने के लिए चढ़ेगा मिंबर पर, रजिस्टर बंद हो जाएगा। वो फरिश्ते भी खुतबा सुनते हैं ध्यान से, फरिश्ते भी खुतबा ध्यान से सुनते हैं। तो हमको कितने ध्यान से सुनना चाहिए, जबकि हमें तो अमल करना है। क्या करना है हमें? हमें तो अमल करना है, हमें और तवज्जो सुननी चाहिए।